Gauri, share. Okay, here we go. Our health is wealth. So we are here. I'm here with Dr. Jak Kalra and myself. As you know, we are doing Health is Wealth every second and fourth Monday of the month. So today is second Monday. So we are here with a very, very important topic with Dr. Jak Kalra, who is a specialist oncologist and hematologist, you name it. She is everything. She's community doctor, that's it. I gave her a name. She's a community doctor. And Yes. you know what? She's going to talk today importance of regular checkups. So very important. You know, anything you are going on in the body, regular checkups, you know, can make you aware and you can treat that thing. So Dr. Jak Kalra ji, welcome with all your experience and expertise for the community. Here we go. Thank you, Jyoti ji, and good morning, almost afternoon, friends, everybody on the Facebook. It's a real privilege and honor to bring this information to you all the time. And like Jyoti ji says, हम ये community के लिए करते हैं. हमको इसमें कोई gain नहीं है, because I'm so happy. Health is so important wealth. अगर हमारी health नहीं होगी ना, तो हमारी wealth किसी चीज के काम नहीं आती है. So let's see why we need a health. We need physical health and we need mental health. दोनों के लिए हमें कोशिश करनी है, not just physical health, because physical health तो आप जाके ऑफिस में डॉक्टर के पता लग जाएगा, लेकिन mental health आपको ही कंट्रोल करनी है. फिजिकल भी आपको कंट्रोल करनी है, because you're the one going for a checkup. So अब देखिए हमारे पीछे में आज हार्ट लगाया है. क्यों मैंने हार्ट लगाया ज्योति जी? Because डॉक्टर जक कालरा जी, यू रिमेम्बर हमने ये प्रोग्राम भी शुरू किया था हेल्थ इज वेल्थ 1 साल पहले, हार्ट के टाइम से शुरू किया था. So this is heart month, I guess. Yes. Plus Valentine month, so both things. American Heart Month, based on maybe on the Valentine Day. In 1984, our president Lyndon B. Johnson declared it's February the Heart Month. Very important for all of us to get our heart checked if they haven't been checked, or at least remember we have to do something for the heart. If the heart is not pumping, there is no life. So heart so important. तो चलिए अब हम शुरू से बातें करते हैं. Heart is still #1 killer in this country. So if we go for regular physical checkups, आपने देखा होगा सबसे पहले वो आपका हार्ट चेक करते हैं. और हार्ट चेक करने के लिए क्या क्या काम करते हैं? Let me just start with the regular physical checkup. Regular physical checkup also means general checkup, healthy checkup, prevention. Regular checkups are geared to prevention, not for treatment of a disease. अगर आप कोई symptom लेके जाओगे ना, तो आपको treat नहीं करेंगे, because that's not covered by the regular checkup. Regular checkups are annual checkups, usually once a year or every 6 months, depending on the age sometimes. तो हम लोग जो ज्यादा बात करते हैं ना, we only talk about adults, age 18 and onwards. So between age 18 and 35, what are the regular checkups? The regular checkups annually is needed. You don't need more than that. And आजकल के ज़माने में जो tele health है, you can even give all your things on the Zoom or a cell phone doctor के साथ में. तो थोड़ा बहुत फायदा भी हो गया. You don't have to physically go if you're very busy. Between 18 and 35, people are busy with the children, with the, so many things, work and everything. They don't go regularly, but just remember, it's very important for you to go once a year to get your height, weight. Things change in life. हमारी सब कुछ change होता है. देखिए weather change होता है. Height तो नहीं change हो सकती. No, height हो जाती है age के हिसाब से. बड़ी तो नहीं हो सकती. I mean after like. You are so right. Right, but when you get to the age, shrink, right? When you get to age over 55 or 60, I'm just saying ये regular physical checkup में क्या करते हैं? सबसे पहले वो आपके vital signs लेते हैं. That they take the heart rate, they take the blood pressure, they take the temperature. आजकल temperature COVID के time में सबका लेते ही लेते हैं. तो ये तो उसको बोलते हैं vital signs. These vital signs also prevent, because people don't realize when they're skipping a beat. अगर आपकी एक beat skip होती है, आपको कभी नहीं पता लगता. But if sometimes during screening, वो उनको पता लग जाता है. तो वो उसको चेक करने के बाद में फिर वो देखो आपका blood लेते हैं, right? Blood लेते हैं. उसमें हमने पहले भी last time भी बोला था, blood में क्या क्या important है. Annual screening में we talk about age 18 to 35.
We want to make sure our glucose is good. We want to make sure our baseline cholesterol is good. We got to keep an eye on the cholesterol from the very, very beginning. क्योंकि कई लोग they are born with high cholesterol, high triglyceride, so they are screened. So we already know that they are prone to heart disease. तो हमको पहले से उनका prevention कर लेते हैं. आपने अभी देखा होगा lately there was a guy who's like 25-year-old on the football field. He fell down. He had a major heart attack just not a month ago. So even the young people can get heart attacks. And with the annual screening, you can maybe judge that what's going on. Cardiogram नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई family history होगी, they should do the cardiogram also. So after they do all the vital signs, they ask, take your blood. By the time the blood goes to the lab or gets checked up, वो आपकी history पूछेंगे. Every year the history can change. We think कि अच्छा हमारे माँ बाप ऐसे पैदा हुआ था, उनको आगे कुछ नहीं होगा, जरूरी नहीं है. उनका ग्लाकोमा हो सकता है, उनको हाइपरटेंशन पैदा हो सकती है, उनकी डायबिटीज पैदा हो सकती है, उनको स्ट्रोक हो सकता है. So the history is very important to change. The same thing with the past history. आपकी history एक साल में change हो सकती है, आप गिर सकते हैं, आपका कुछ भी headache हो सकती है. So it's important for the doctors to get to that history and put it in your record. Or other important क्या होती है, we are talking about the young. For the young females, you also want to know their periods कैसे आते हैं, उनका pap test होता है every year. और men के लिए ज़्यादा ये बातें नहीं between 18 and 35, but still they ask you if you have any sexually transmitted disease, are you drinking too much. ना ये history जो होती है ना, it's you are the only one who can give your own history if you're honest. किसी को hepatitis हो जाए तो बताएगा, लैब से पता तो लग जाएगा, लेकिन अगर आप हिस्ट्री देंगे तो आपके रिकॉर्ड में जाएगी और आपके रिकॉर्ड में हमेशा रहेगी. So these are for the 18 to 35. Now we go to 35 or 40 to 65. That's a very important age. During this age, a lot of things changes. And this is the age where blood pressure gets very important, blood sugar gets very important, thyroid gets very important. ये जो साथे ये जो liver functions are very important, kidney function, all these things are tested on a regular blood test. So if you are getting screened for all these tests, you can pick up all these diseases a little bit early. हम बात करते हैं hemoglobin A1C. Hemoglobin A1C is a 3 months together to tell us how much hemoglobin in your body has sugar attached to it. That gives us some kind of guidelines. Are we prone to diabetes? अब हमारी family को है, और हमारा hemoglobin A1C अच्छा. तो I've been telling hemoglobin 5.75, if you don't remember, is good. Anytime over 5.8 or 5.9 is called pre-diabetes. So उसके लिए तो फिर आपको every 3 months कराना पड़ेगा. So it's very important for you to know your baseline. अब उससे पहले आपको कोलेस्ट्रॉल पता लग जाएगा कि हाई कोलेस्ट्रॉल कितना खराब है, HDL, LDL, triglyceride. And every year there is a new things keep coming, so they keep checking apolipoproteins, पता नहीं क्या क्या नाम है हार्ट के. So वो भी. तीसरी जो important चीज है is we are also checking our kidney functions. People have stones. कई बार stone में pain नहीं होती है, लेकिन they can block your kidneys. Block the kidneys और उसके साथ ऊपर में stone ऊपर चला जाएगा और उससे आपको पता लग जाएगा. Urine checkup. Urine gets regular checkup. कई बार यूरिन में ब्लड सेल होते हैं जो आपको दिखेंगे नहीं, माइक्रोस्कोप के अंदर दिखते हैं. देन दे कैन चेक योर किडनीज की किडनीज के कोई सिस्ट तो नहीं है, किडनीज में कोई ट्यूमर तो नहीं बना. सो दैट एज इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दैट एज दे आल्सो डू एनुअल कार्डियोग्राम. एंड इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, they also do every 6 months cardiogram. If you have blood pressure, you have diabetes, you need to go every 6 months. Another important thing for screening is mammogram for all the women. अब तो एज कम कर दी है, लेकिन पहले 40 एज होती थी मेमोग्राम के लिए, अब उन्होंने 35 कर दी. इफ यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो स्टिल एज 40. और स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है? कोलोनोस्कोपी. कोलोनोस्कोपी यू कैन गेट द कोलन कैंसर अर्ली इफ देयर इज अ प्रॉब्लम. आप एसिड रिफ्लक्स की बात हम करते हैं, ये सब आपकी हिस्ट्री पूछने से आपको जल्दी टेस्ट करा देंगे तो जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी.
And then the other thing that they have added is colonoscopy. हमने age की बात करी थी, usually at age 50, but recently again they went back to age 45. But अगर आपकी family history है तो उससे पहले भी आपको अगर नहीं जाएंगे डॉक्टर तो आपको कोई बताएगा नहीं, आप देखेंगे भी नहीं. So उससे पहले भी colonoscopy की जरूरत हो सकती है. Lung cancer screening. It was not popular to screen you for a lung cancer, especially people who smoke और जिनके घर में second hand smoke थी. Smoking अब अगर आप अब नहीं करते, लेकिन आपके जो lungs के ऊपर वो इफेक्ट तो है ना. अगर आपको एम्फीजीमा है, COPD है, तो इफेक्ट तो था लंग के ऊपर. So then it is very important for you to get it's called a high resolution 1 or 2 views of CAT scanning. ये अभी it's a relatively new lung cancer screening. तो अगर आपको छोटा सा कोई नोड्यूल है, जल्दी पकड़ा जाएगा और जल्दी तो क्यूरेबल. If not, then it's not a good thing. तो हमने देखो लंग कैंसर स्क्रीनिंग करी, मेमोग्राम करी, कार्डियक स्क्रीनिंग करी, थायराइड स्क्रीनिंग करी, डायबिटीज स्क्रीनिंग कर ली, ब्लड प्रेशर स्क्रीनिंग कर ली, यूरिन स्क्रीनिंग कर ली. अब हमारा रह गया प्रोस्टेट स्क्रीनिंग. प्रोस्टेट स्क्रीनिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर मेन ओवर 50 मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि उनको यूरिनरी फ्रीक्वेंसी होती है. तो वो कहते हैं अरे कुछ नहीं, मैंने पानी ज्यादा पी लिया, रात को 7 बजे पी लिया, मैं बार बार बाथरूम जाता हूँ बिकॉज आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. नॉट नेसेसरली. The prostate may be getting enlarged. Most of the time it's a benign prostate, but it can be sometimes malignant even at a young age. So ये चेकअप आपको कराने ही होते हैं. उसके बाद में एज में important है osteoporosis screening between 50 and 65. Whenever the menopause happens, after like 3-4 years of menopause, the bones start getting thinner. वहां से हमारी हाइट कम होती है, जब बोन्स थिन हो जाती हैं. सो इसलिए कम हो जाती है. हाँ, सो एवरी ईयर थोड़ी सी कम होती है, लेकिन अगर आप अपनी बोन्स को स्ट्रांग रखेंगे, अपना पोस्चर अच्छा रखेंगे, तो हाइट तकरीबन सेम ही रहती है. So osteoporosis for the women, it's covered every 2 years by insurance. So every 2 years अगर आपको पता लग जाए आपकी बोन्स थोड़ी थिन हो रही हैं, तो आप एक्स्ट्रा कैल्शियम, विटामिन डी भी ले सकते हैं. अगर और भी ज्यादा प्रॉब्लम है, so then there are medication that can be given by mouth or can also be given injection if needed. तो men के लिए is men important for osteoporosis screening? Yes. हम लोग सोचे men की हाइट नहीं कभी कम होगी, क्योंकि the men tend to have the hormones for a longer time. उनके हार्मोन आपने देखा होगा, men can have children at any age. That's not fair, but that's what it is. तो उनके जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होते हैं, they last longer time, whereas women have estrogen which gets lower after 2-3 years of menopause. But men can get osteoporosis, so they also need to screening every 5 years. So every 5 years men की screening कर लेते हैं, और every 2 years women की screening कर लेते हैं. और हम रेगुलर चेकअप में क्या चेक करते हैं, और हम चेकअप करते हैं कि हमारी इम्यूनाइजेशन अप टू डेट है कि नहीं. वो डॉक्टर आपको पूछेगा कि आपने ये इंजेक्शन लगाया है, क्योंकि निमोनिया का रिलेटिवली न्यू ही है ना, पहले वाले पुराने आउटडेटेड हैं. तो अगर वो पहले वाला लगा हुआ है, तो अगर 3-4 साल हो गया तो नया लग सकते हैं. और शिंगल्स का है, एट एज 50 यू कैन गेट शिंगल्स. सो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं, आप गूगल में पढ़ सकते हैं, लेकिन अरे मेरे लिए नहीं है, ये मुझे क्या होगा. सो एवरी टाइम यू गो फॉर अ चेकअप, ये आपसे पूछ सकते हैं, और आप अपना एज 50 के बाद में वैक्सीन कर सकते हैं. तो हमारा इम्यूनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो गया. इफ यू आर एक्सपोज टू एनीबडी विद इन्फेक्शियस डिजीज, तो वो भी आपको क्वेश्चन पूछने से पता लग जाएगा. इफ ड्यूरिंग समर्स you go into woods and everything, you can get tick bite. तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि मेरे को टिक बाइट हो गई है, लेकिन कोई पूछेगा आपसे, आपने कहीं ट्रैवल करा है, इंडिया में गए हैं और आके एकदम से फीवर शुरू हो गया. इट कुड बी कॉलरा व्हिच इज नॉट हियर इन दिस कंट्री, इट कुड बी मलेरिया. तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में कम आएंगे, लेकिन अब जब जाते हैं आप, आपसे एलर्जी पूछते हैं, एलर्जी भी चेंज हो जाती है हर साल, वो आपको हिस्ट्री में डाल देंगे, आपके ट्रैवल हिस्ट्री उसमें डाल देंगे, आपके बच्चों का. और जो लास्ट बट नॉट लीस्ट इज ए मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग.
ड्यूरिंग दिस विंटर हम लोग घर बैठे हुए, राइट? हम लोग तो देखिए ज्योति जी, हम घूमने जाते हैं, हम लोग जूम पे जाते हैं, हम लोग गाने गाते हैं, हम खुश रहते हैं, राइट? लेकिन सारे लोग ऐसे काम नहीं करते ना, तो घर में बैठते हैं, घूमते भी नहीं है, फ्रेंड्स भी नहीं है, तो वो डिप्रेशन में हो सकते हैं, राइट? सो डिप्रेशन इज ए वेरी silent disease, and silent sometimes is has to come out. If you don't screen for depression, if a person goes complete depression, they suicidal. तो वो भी आपसे पूछते हैं कि आप खुश हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, पता नहीं आपके डॉक्टर पूछते हैं कि नहीं, मैं तो सबसे पूछ लेती हूँ, व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज, डू यू गो टू चर्च, डू यू हैव गुड फ्रेंड्स? कितने पेशेंट का तो मैंने कभी देखा है ना, वो दे लूजिंग वेट, एंड लूजिंग वेट, कोई कोई बात ही नहीं है, उनका पेट भी चेक कर लिया, उनके कैट स्कैन भी करा लिए, अननेसेसरी टेस्ट करते हैं कि क्यों वेट लॉस हो रहा है, कैंसर, और पता लगता है आई एम सो लोनली, डू यू ईट, नो, नोबडी गिव्स मी फूड। अरे उनके बच्चे उनका खाना बाहर से लगा देते हैं, ओके खाना तो आ गया, लेकिन जब तक कोई अच्छी कंपनी ना हो तो खाना खाने को दिल ना करे तो क्या फायदा हुआ? तो आई हैड सो मेनी पीपल, ओल्डर लेडीज ऑफ कोर्स, अब हम 65 से ऊपर जा रहे हैं, बट समटाइम्स व्हेन यू हैव अ हार्ट प्रॉब्लम्स इन द लाइफ, थिंग्स कैन हैपन। तो ये सब कुछ अवॉइड करने के लिए हमको मेंटल स्क्रीनिंग भी करनी पड़ती है। उसके बाद में आप कहते हो अच्छा मुझे हेडेक हो रही है, कोई बात नहीं, छोटी सी हेडेक है, इट्स ओके, ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर बार बार हेडेक हो रही है, सो दैट कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग टूल for the doctors. If your headache is coming and going, most of the people will go for a checkup, but sometimes you avoid it, you know, you कहते हो कोई बात नहीं, क्या है, सबको होती है। तो glaucoma is can also present with a severe eye headache on the top of the head. So glaucoma is a silent disease also, and it comes from the families maybe prone to glaucoma. लेकिन आपको कोई भी एज में ग्लूकोमा हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट है, सो इट्स अ प्रिवेंशन अगेन। इफ यू डोंट प्रिवेंट ग्लूकोमा एंड ग्लूकोमा सेट्स इन योर आईज, उसमें फिर आपके ब्लीडिंग हो सकती है आई के पीछे में, एंड यू कैन लूज योर विजन, एंड वी नीड आवर विजन, सो इम्पोर्टेंट। Everything is important. The heart is important, the blood pressure, the blood, everything is important. But vision is so important to look around. So glaucoma की स्क्रीनिंग भी होती है। उससे मुझे याद आया कि आई चेकअप के लिए कितनी बारी जाना चाहिए आपको। आई चेकअप एज अ यंग चिल्ड्रन, यू नो, जिनको कोई आई की प्रॉब्लम नहीं है, every 2 years. But if your age group 50 to 65, once a year eye ki checkup because of glaucoma, looking back into the optic nerve, looking back into the eyes. क्या चीज डेवलप हो सकती है after age 50? Cataract. Anybody can have cataract after age 50. So cataract कई बारी आपको नहीं पता लगेगा, अरे देखो अब 65 के, आप ना टक्कर लग रही है, इधर लग रही है, उधर लग रही है, क्यों लग रही है, अरे कोई नहीं, मैं you know I don't have a good balance, but it could be a cataract developing in one eye, जो कि आपको उस तरफ ठीक से दिखाई नहीं देता। अगर आप ड्राइव कर रहे होंगे तो आपको लाइट चमकती है या वो कोना नहीं दिखाई देता, सो यू आर मोर प्रोन टू फॉल फ्रॉम द कैटरेक्ट। सो ये सब जब रेगुलर चेकअप के लिए जाओगे, आई चेकअप के लिए, देन यू कैन फाइंड द कैटरेक्ट अर्ली। इसमें कोई शर्म की बात नहीं, these are natural things that are going to happen. For some people it happens early, for some people it happens late, so whatever it is, our job is to, हमारा सबका यही फर्ज होना चाहिए कि अपनी हेल्थ को ऊपर रखें। उसके बाद में आप कोई और सोचिए, अगर वंस ए ईयर जाएंगे तो अच्छा है, जल्दी डायबिटीज पता लग जाएगी। ब्लड प्रेशर इज अगेन ए साइलेंट किलर। जैसे हम साइलेंट की बात करें ना, कोई सिम्टम नहीं होते। ब्लड प्रेशर जो होता है ना, अनलेस द ब्लड प्रेशर इज ओवर 180, ओवर 100, 110 इवन, नीचे वाला 110 पे भी सिम्टम नहीं होते। वो सिम्टम नहीं होंगे तो उसके हार्ट के ऊपर कितना स्ट्रेन पड़ रहा है। यू कैन गेट अ हार्ट अटैक, यू कैन गेट अ स्ट्रोक। सो लोग तो घर में मशीन रखते हैं, लेकिन इट्स नॉट 100% मशीन। सो यू नीड टू गो फॉर अ रेगुलर ब्लड प्रेशर चेकअप, और स्क्रीन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर। आपको देखो कई बारी जैसे ही आप डॉक्टर के ऑफिस में जाते हो, आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा आता है, क्यों आता है ज्योति जी? पहले ज्यादा, आप थोड़ा डॉक्टर के ऑफिस में जाने से पहले सभी को थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है, इंक्लूडिंग मी। वो यस, स्ट्रेस होता है और उससे बस आपका ब्लड एंग्जाइटी, प्रेशर एंग्जाइटी, स्ट्रेस। हमारी एड्रेनलिन रिलीज होती है,
तो इसलिए जो कई बार आपने देखा होगा डॉक्टर आपको नर्स नर्स पहले लेती हैं, कोई डॉक्टर खुद लेते हैं, आपको काम करते हैं, कैसे हो, आज का दिन कैसा था, यू हैप्पी? Yeah, they make you relax little bit. Yes, and I also find that if I tell them, क्योंकि कई बार नर्स कहेगी ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, जो ऑटोमेटिक मशीन लगाते हैं ना, उससे मेरे को लगता है हमेशा ही गलत आता है हमेशा. सो इफ इट्स वो पंप वेरी वाली जो है मैनुअली करते हैं that yeah, so I always tell them, please repeat the blood pressure at the end of the visit when you have calmed the patient down. Before I send them home, I I tell them, check another with manually, not automatic machine. Automatic machines are good screening tools, but they're not like to find their disease or a problem. So anxiety is number one cause for blood pressure. तो अगर एक दिन आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा तो फिक्र मत करिए, कल नीचे आ जाएगा. बट अगर रोज रोज ज्यादा रहेगा और एंजाइटी भी नहीं है, देन यू नीड टू गेट टू द मेडिकेशन और अगर गेट आपका ज्यादा है तो आपको बस थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, ये भी है ना, थोड़ा यू नीड रेस्ट. yeah, stress is number one causing the blood pressure all the time. तो ये हमने तो आप बहुत सारी स्क्रीनिंग कर लिया. आई डोंट थिंक कोई बचा है ओवर 65. ओवर 65 में वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी जो हमने अभी बातें करी है ना, हार्ट की, थायराइड की, डायबिटीज, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक और नई चीज, दो नई चीज और इंपॉर्टेंट है ओवर 65. वन इज फॉल प्रिवेंशन, and they must check your balance and they should check your कि आप इधर उधर इस तरफ तो नहीं जाते, उस तरफ तो नहीं जाते. उससे आपको थेरेपी में भेज सकते हैं और आपका बैलेंस ठीक कर सकते हैं. सो बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर सर्टेन एज we are all prone to accidents. बाथरूम में एक्सीडेंट हो सकता है. बाथरूम सर नंबर वन बाय द वे. और फोकस एंड बैलेंस, एक ही तरफ फोकस करेंगे तो कम बैलेंस खराब होता है. लेकिन हम लोग कितनी बातें सोच रही होती है एट अ टाइम, 20-30, तो बैलेंस खराब हो जाएगा और गिरेंगे तो हमारे कोई प्रॉब्लम होगी. सो फॉल प्रिवेंशन. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हियरिंग प्रॉब्लम. Hearing problem usually develops after age 65. It could be sooner, but 65 के बाद में screen करना पड़ता है. So you are going after 65 for fall prevention screening and also for hearing testing. And एक important तो है, लेकिन हम लोग अभी ज्यादा उस पर importance नहीं देते. It's called advanced directives. Advanced directives भी बहुत important है. What do you want if you get sick and you land up in the hospital, which can happen? Anybody can get a heart attack. Anybody can get, infection, pneumonia. अब हॉस्पिटल में जाते हैं, कॉम्प्लिकेशन हो गई या आप पहले से ही प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा, तो आप क्या, अपनी विशेष क्या हैं? व्हाट डू यू वांट? यू वांट टू बी ऑन अ वेंटिलेटर फॉरएवर, और डू यू वांट कि ट्रीट नहीं हो सकता तो मेरे को आप वेंटिलेटर हटा दो? ये आपकी चॉइस है. दिस इज योर चॉइस. इफ यू डोंट टॉक अबाउट इट, एडवांस डायरेक्टिव्स, डॉक्टर के पास कुछ नहीं होगा, तो वो लोग हॉस्पिटल वाले पूछेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं सब कुछ कर दो. और अगर कोई ऐसी डिजीज कर हो जाए ना हो ही ना, लेकिन कोई कैंसर है, सब जगह फैला हुआ है और आपने ये नहीं अपने बारे में सोचा, तो इट इज रियली वेरी सैड कि आपको अननेसेसरी प्रोलॉन्ग करेंगे. तो वो भी आपने एडवांस डायरेक्टिव बोलते हैं उसको. I won't talk about it that much, but it is very important on a regular checkup to talk about advanced directive. तो वो भी हमने कर लिया जी. अब हम बड़े खुश हैं. मैं लास्ट करते जा रही हूँ क्योंकि सारी बातें इंपॉर्टेंट है. एक में कवर करना है is donation. If anything happens to you, if you die at a young age, a lot of young people are ready to donate their organs. देखिए, किसी का हार्ट अटैक एकदम से फेल होता है, अगर किसी यंग का हार्ट मिल जाए उसको, तो किसी दूसरे को लाइफ दे सकता है. आईज डोनेट कर सकते हैं, किडनी. इट इज योर चॉइस. सो इफ यू वांट टू डू थिंग्स लाइक दैट, आपको डोनर बन सकते हैं. आपके वो लाइसेंस या जहाँ पे डाल देंगे. तो इफ एनीथिंग हैपेंस टू यू सडनली, यू आर गिविंग लाइफ टू सो मेनी अदर पीपल. सो ये सारी बातें ना वो वहां पे आजकल पूछते हैं कंप्यूटर में. आपका जब क्वेश्चन आंसर देते हैं, इफ यू वांट टू डू इट, यू डू इट. इफ यू डोंट वांट टू डील विद इट एट दिस टाइम, डोंट डील विद इट, बट थिंक अबाउट इट. आप सोचेंगे, अगर आपको एंड में लगेगा कि अच्छा है, तो नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे आप वो ऐड कर देंगे. टोटली अप टू यू, बट अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक उसके बाद में अभी बस करती हूँ. आज टाइम नहीं है, बाकी तो ब्लड के बारे में तो हमने लास्ट टाइम
बात I करी have a थी। question जो अभी आपने बोला ना, आप अपने डॉक्टर को बता दीजिए आपकी क्या विश है about your body organs. But you know, do you have in medical, I don't know, any like general data, like एक डॉक्टर को आप बताओ तो वो सबको पता लग जाएगा? आजकल कंप्यूटराइज है ना, तो एटलीस्ट No, I mean, let's see. Okay, let's start from here. या Let's see. या You said importance of regular checkup. So we go to our internalist, right, for checkup, and then he tells you to go mammogram here, there. So all the specialists you go, right? So you are talking about this to tell your general doctor or your specialist when you go, you know? you're going to actually it should be a general doctors to get all these advanced directives and everything. Okay. Like, you know, like I'm going to my I have the serious patient, so I have that too. So आपने connection की बात करिए ना, वो connection ऐसे होता है when you enter the hospital when you're sick, आपको पूछते हैं कि आपका regular doctor कौन है ना, और कौन से specialist ने आपको भेजा है। तो अगर उनके पास information होती है ना, तो वो दे सकते हैं उस वक्त। और तो आप ये सारा डेटा जो है वो सब लोग या देख सकते हैं. That's what you're saying. हाँ, oh yeah, every क्योंकि almost पहले every ऐसा नहीं था, पहले एक yes, आपका डॉक्टर है उसके पास ही डेटा रहता था, बट yes, नाउ इट्स लाइक yes. यूनाइटेड एवरीथिंग No, wherever कंसोलिडेटेड डेटा. um, एक के कंप्यूटर दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन यू कैन सी योर ओन इंफॉर्मेशन। आप अगर एनवाईयू में जाते हैं तो उनका ऐप है, अगर आप नॉर्थ शोर में जाते हैं उनका ऐप है, जो भी आप मेजर तो आप चेकअप ही देख सकते हो फिर. आप खुद ही देख सकते हैं। और आप अगर आपने अपने फैमिली को बताना है आप उनको भी बता सकते हैं। सो दिस वे यू आर इन चार्ज ऑफ योर इंफॉर्मेशन। ये जो हमारी जो नई सेंचुरी में आया ना, दिस इज वेरी हेल्पफुल। और समटाइम्स इट्स सो हार्ड टू गेट ऑन दोस, मेरे को तो बादर ही करते हैं, बट यू नो वी कैन गेट टू द न्यू सेंचुरी एंड नॉट स्टे बिहाइंड। सो हम सब लोगों को चाहिए कि जब वो ऑफर करते हैं अपने चार्ट पे जाओ, अपना ब्लड टेस्ट रिट्रीव करो, अगर आपको कुछ ठीक लगे ये ठीक नहीं डॉक्टर ने करा, यू कैन कॉल देम एंड क्वेश्चन दैट। अगर आपका ब्लड टेस्ट आपको लगता है कि एक्सप्लेनेशन चाहिए, यू कैन कॉल एंड क्वेश्चन दैट। पहले जमाने में ऐसे कैसे होता था? नहीं होता था ना, डॉक्टर ने जो कह दिया वो ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट एनी मोर। You can Google the information, you can call the doctors. If you're not satisfied, call them again. So it's I think it's very, very good these days. तो ये हार्ट और आई थिंक आई पर्सनली थिंक यहाँ सारे जो आपके जो इंफॉर्मेशन है, हमको ये नहीं डॉक्टर्स पे भरोसा नहीं करना चाहिए, सॉरी टू से, पर अपनी इंफॉर्मेशन No, अपने पास you रखनी. are employers. Your health is your health. It's doctors can only do so much. They They just can want to forgot also to follow yeah, you, you know, but yes, even yeah, you go to, you know, my husband went for internal medicine doctor, and yeah, they didn't call for 7 days. Every day he was saying, let me know my you know blood report. I mean, you have to sometimes yeah. push them, you know. Push them. I agree. I agree. Mm. With the new computer system, I tell you, I can only talk about my new system now. जो भी blood report आती है, I have to sign it every day. They would not take it off my computer till I look at it. तो मैं देखती हूँ अगर कोई भी important है ना, मैं उसको flag करके ना, either I tell my nurse to call them today, or if it's very important, like this lady, I saw a new shadow on her chest X-ray. I wasn't expecting that. मैंने तो ऐसे ही regular chest X-ray कराया. I made sure I called that patient that same evening. मुझे मालूम है कितना important है. But I am so tuned to this serious illness, but not everybody is tuned to that. उनके मेरे को तो चलो 10-12 कॉल आएंगी, 25 आएंगी, उन लोगों को 50-50 कॉल आती हैं. So sometimes there's a delay, but if it's something very serious, I think it's our responsibility as a caregiver to do within 48 hours. I personally think like that. You are Really. a very good doctor, I know. Plus, you are dealing with very serious Yeah, patients. Right? यही बात है, So, यही बात. you know, तो even कई बार one day make a difference. I personally think, you know. yes, You never किसी know, one day even, you know, they makes a अगर difference. किसी का ब्लड शुगर बहुत हाई होगा, मैं ब्लड शुगर की डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं भेजती हूँ ना चेकअप करने के लिए. एनी टाइम इट्स डेंजरस लेवल ओवर 250, आई कॉल द पेशेंट. वो कहते हैं हमको मालूम है, हमने चार्ट में देख लिया. आई सेड नो, इट्स माय जॉब टू टेल यू, so call your primary doctor and adjust your medication. I don't adjust medication for diabetes, but at least I'm aware that इनकी blood sugar ज्यादा, so next time when they come for their treatment, I don't give them too much steroids, जिससे कि blood sugar ज्यादा हो जाती. So it's all a matter of how much responsibility the doctor takes, and of course, I really think the patient should start taking almost 100% responsibility for their health. So otherwise, so
we are all going to be suffering. So let's have a good health so we can do the quality work as long as we can. ठीक है ना ज्योति? तो हमारे तो प्रोग्राम का नाम ही है हेल्थ इज वेल्थ, इन्वेस्ट इन योर हेल्थ, दैट्स इट। और Yeah. इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो आप? नो स्ट्रेसफुल लाइफ, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ, अच्छा Yes. सोचो, बी पॉजिटिव, एंड दैट्स इट, देन यू आर हेल्दी। और नहीं भी है तो थोड़ा कम हो जाएगा आपका लेवल। Exactly. कोई बात नहीं, लेकिन हमें कोशिश करनी है अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाना है ना? तो क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है जो हम लोग कर रहे हैं। देखिए अभी हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, so it gives us a quality of life and gives somebody else a quality of life. और मैं तो, हम लोग तो सबकी आंखों की भी परवाह करते हैं, इसलिए वी हैव कट डाउन ऑन जूम, और ये भी हमारा शो आधे घंटे का ही होता है। और भी जो हम करते हैं मेडिटेशन का भी 1 घंटे से ज्यादा नहीं, 1 घंटा ठीक है, बट अगर Yes, कई लोग दे yes. आर लूजिंग देयर आई साइट बिकॉज सारा दिन जूम पे बैठे रहते हैं। हाँ, देखिए जो बच्चे लोग हैं आजकल कंप्यूटर में ही काम करते हैं घर से 8-8 घंटे। आई फील रियली बैड फॉर देम। या क्या करें? जग जी, आपने आज बहुत अच्छा कवर कर लिया। सो बेस्ट थिंग इज जस्ट बी हेल्दी। तो अपने डॉक्टर के पास जाओ, तो वहां से फिर आप अपने स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, आपका डॉक्टर एग्जैक्ट आपको भेजेगा, एग्जैक्ट क्योंकि यू कैन नॉट एंड अप इन एनी स्पेशलिटी, राइट? विदाउट अ रेफरल। या तो आपको आपका इंटरनल मेडिसिन वाला डॉक्टर जो चेकअप के लिए जाते हैं, वो आपको बोलेंगे। जब भी मैं जाती हूँ मेरे को 6 लिख के दे देते हैं, इन सबके पास जाओ। आई नो। और आप कितने के पास जाती हैं? नहीं, मैं कहती हूँ जब भी मैं जाती हूँ अपने इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर के यस। पास, वो लिख के दे देते हैं आपको प्रिस्क्रिप्शन। इधर भी चले, दे वांट यू टू बी हेल्दी, राइट? एक कई बात बार हम नहीं भी जाते हैं, सोचते हैं अरे छोड़ो अभी, फिर अगले साल चले जाएंगे। एक मैं और चीज कहना भूल गई, हमारे इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इट्स कॉल्ड स्किन कैंसर स्क्रीनिंग। जो लोग बहुत बीच पे जाते हैं, पानी में जाते हैं राइट, विद द सन एक्सपोजर, तो जो पीछे में आगे वाले तो आप देख सकते हैं स्किन के लीजन, जो पीठ पे होते हैं वो नहीं दिखाई देते हैं unless somebody looks at it. So वो स्किन कैंसर की स्क्रीनिंग भी रेगुलर चेकअप पर में इंडियंस को ज्यादा नहीं हो रहा, राइट? नहीं हो। मेलानोमा विच इज इंडियंस नहीं जाते डर्मेटोलॉजिस्ट के नहीं पास, आई नो दैट, अनलेस यू हैव अ प्रॉब्लम, Yeah, that's absolutely right. Yes, yes. तो चलिए ज्योति जी, वेरी जल्दी। गुड। आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं, और फिर नहीं नहीं आप, नहीं, नहीं, गाने की लाइन तो होगी उसके हाँ, बिना मतलब मेडिकल सेशन हम अपने Okay. आपको मंडे को मिलेंगे, 4th मंडे 12 बजे। और Yes. जाने से पहले ऑफ कोर्स वैलेंटाइन डे इज कमिंग। बस कब है? कल ही तो है। कल है Tomorrow is 14 Valentine's Day, फरवरी। तभी Yes. जग जी ने हार्ट ऑलरेडी पीछे लगा लिए। और जग जी अपना हार्ट सारे पेशेंट्स को देती है, उनको खुश रखती है, आई नो दैट। Yeah. I try my best. I really do try my तो best. चलो, Yes. मैं आप कहो उससे पहले ही मैं 4 लाइनें गा देती हूँ वैलेंटाइन सॉन्ग, उसके बाद आप भी कुछ कहिए, राइट? बेस्ट सॉन्ग ऑन हार्ट। Hmm. तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, पहली पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता है, धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। क्या हैप्पी बात है। वैलेंटाइन डे टू एवरीबॉडी टुमारो। आपकी Yeah. जिंदगी हमेशा सबके प्यार से भरी रहे। थैंक यू। हैप्पी वैलेंटाइन डे टू एवरीबॉडी। तो ये हम सब के लिए हेल्थ इज वेल्थ, हार्ट के लिए गाना है, जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना, प्यार का बंधन, जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना, जीत ही लेंगे बाजी हम तुम। ज्योति जी, हम और आप सब लोग हमेशा बाजी जीतते रहे, दिल की बाजी भी जीते और हेल्थ की बाजी भी जीते, इसी से हम खुश रहेंगे। चलो, हम फिर अभी बहुत अच्छा जग जी, बहुत अच्छा बोले आप, थैंक यू। फिर आप लोगों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते, see you in 2 weeks.